हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स सॉल्यूशन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, 100 टन्स क्लोजली बाउंड circular coil of radius 5 centimeter has a magnetic field of this at center. The current flowing through the coil and the magnitude of magnetic movement of the coil are. So here magnetic field is given. What is the magnetic field? B is equal to mu 0 Ni upon 2a, and this is equal to 3.14 into 10 raised to power minus 3. From this, here current is not given in the question. So first we find the current. I is equal to 3 into 3.14 into 10 raised to power minus 3 into 2a upon mu 0 n. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी 2.5 एम्पियर आ जाएगी, 2.5 एम्पियर। अब इसके बाद हम अगर मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू NIA होता है। अब हमारे पास n गिवन है, n कितना है 100, I हमारा आ गया 2.5 और एरिया क्या हो जाएगा पाई a स्क्वायर। a की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू जो आ जाएगी 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट। आंसर कौन सा हुआ इसका? फर्स्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या लिखा है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जैसे क्लास में बताए जाते रहे वैसे ही क्वेश्चन है। पहला E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। E इज इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, lambda is equal to h by p, it is the de Broglie wavelength, and this is the point which is not in the core syllabus. It is simply little bit different. Compton effect, Compton effect means scattering of photon, and Compton effect gives the particle nature of light, and hence you get the answer फर्स्ट। आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन, डिफ्रैक्शन, वेव नेचर ऑफ लाइट। देखिए तो उसके बाद आंसर कौन सा हो गया इसका? फर्स्ट। नाउ सेकंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट इन द सर्किट। हियर यू कैन सी this is positive and this is negative. In this case this diode becomes reverse bias and this also becomes reverse bias. These two diodes are in forward bias, therefore here R equivalent becomes 4 into 2 upon 4 plus 2, and I is equal to V upon R equivalent. On solving this you can get the answer V is 10 upon 8 into 6. The answer becomes 15 by 2 ampere. Answer is 2. Answer is 2. Now next one is, this is the question related to unit dimension and measurement. The speed of light in vacuum is taken at unity, means speed of light is 1. In this situation the distance, you know distance x is equal to vt. Speed of light is 1 and time is 6 minutes 40 seconds. 6 minutes and 40 seconds. This gives you 360 plus 40. This is equal to 400 seconds. Then this becomes
400 unit, answer becomes 3. Answer becomes 3. Now next one, question number 5. The following plot shows the variation of V with time t of a ball thrown vertically upward. Here ball is thrown vertically upward. Here if we take the vertically upward direction positive, then the graph becomes like this. T, ball is thrown, therefore it is having initial velocity, and velocity time graph becomes like this. So answer is C only. Answer is C only, first option. Now next one, question number 6. In a vernier calipers, 20 VSD coincide with 16 MSD. So here what is least count? Least count is equal to difference in divisions upon number of divisions into LC of main scale. What is the difference? Is 4, number of division 20, number of divisions on vernier scale, into least count of main scale. This becomes 0.2 centimeter. The answer becomes 1/5 mm. This becomes 0.2 millimeter, and this becomes 0.02 centimeter. Answer becomes 3. Answer becomes 3. This is the question. Now next question is, an AC circuit contains resistance 1 kilo ohm, capacitor 0.1 microfarad, and inductor 1 millihenry connected in series, means series RLC circuit. The resonance frequency, what is the formula for resonance frequency? Nu is equal to 1/2 pi root LC. Nu is equal to 1/2 pi root LC. This becomes 1/2 pi root. What is L? 1 millihenry. 1 millihenry, and what is the capacity? 0.1 into 10 raised to power minus 6. This becomes 10 raised to power 5/2 pi hertz, and this is equivalent to 15.9 kilohertz. 15.9 kilohertz. Now next question is, the figure given below shows a long straight solid wire. So here suppose the wire is like this, carrying current I, carrying steady current I. The current is uniformly distributed. Current is uniformly distributed, and radius is A. Now if point is inside, so by Ampere circuital law, the answer becomes B dot dl is equal to mu 0 I enclosed. So here B into 2 pi x is equal to mu 0 I upon pi a square into pi x square. Here you get B proportional to x, means graph is a straight line. On solving this, you are getting the answer 1. But if you want to calculate B outside, then this becomes, suppose this is the Ampere loop. Here you can write here B dot dl mu 0 I. This becomes B into 2 pi
R is equal to mu 0 I, here B proportional to 1 by R. So your answer becomes first. Now question number 9. A uniform metallic wire having resistance 4 ohm is bent to form a square loop ABCD. 4 ohm is the resistance. So here ABCD is the wire, means AB, BC, CD and DA all are 4 equal resistances. एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1 ओम, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1 ओम है। अब 1 ओम जब वैल्यू है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो ये 2 ओम अलग हो गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये भी कितना है 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका पूरे का 1 ओम हो जाएगा। तो इस केस में I की वैल्यू कितनी होगी 2/1, दिस इज 2 एम्पियर। आंसर बिकम्स 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द क्वेश्चन, calculative question. Here density is given. Generally density is a constant. Question is asked like this: what is the density of this, and density of one atom is given. Here rho is equal to 2.29 into 10⁻17 kg per meter cube, and मास जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 19.926 इंटू 10⁻⁻27। और हमसे जो पूछा है ए पूछा है, तो ए कैसे आएगा। ए के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3। तो देयरफॉर A is equal to R cube upon R0 cube. You know R0 is equal to 1.2 into 10⁻⁻15 meter. You know, and it is also given. Now how can you solve it? First you find R. तो M is equal to rho into V. M is equal to rho into 4/3 pi R cube, means R cube becomes 3m upon rho into 4 pi। अब ये वैल्यू अगर वहां पे हम यूज कर लेते हैं 3m upon rho into 4 pi अपान R0 क्यूब, तो हमारे पास A आ जाएगा और A अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 12। तो आंसर हो जाएगा कौन सा फर्स्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ में। ये जो सवाल दिया रखा है ये दे रखा है बेटा मोशनल ईएमएफ का, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो फार्मूला पर बेस्ड है, और यहाँ पर दे रखा था कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है और इस रेक्टेंगुलर लूप को कुछ इस तरीके से आगे लेकर के जा रहे हैं। साइड लाइन दे रखी है, छोटी वाली साइड ये 3 सेंटीमीटर है, और इसी के अक्रॉस हमें ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट फार्मूला है E इज इक्वल्स टू BVL, और आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये रहा B, इसका वैल्यू है 0.3 टेस्ला, वेलोसिटी दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड में, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और लेंथ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करें मीटर में 10⁻⁻2, और इसका आंसर आ जाता है 1.8 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मोशनल ईएमएफ के ऊपर बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन, जहां पर हमसे पूछा गया शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही बेस्ड है, S इज इक्वल्स टू IG इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस IG। ये फार्मूला हम आपको पढ़ाते हैं, IG इंटू G अपॉन I माइनस
आई जी शंट का वैल्यू निकालना है। सारी वैल्यूज अपने को दे रखी हैं और क्योंकि आई जो दे रखा है वो दे रखा है 10 एम्पियर और आई जी का जो वैल्यू है वो 1 मिली एम्पियर है, तो आप यहां नीचे से इस आई जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में वैल्यू रखेंगे 10⁻³ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 एंड डिवाइडेड बाई जो आपका आई है उसका वैल्यू है 10। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं ये आता है 0.01, तो इसका आंसर आ जाता है 1। सिंपल क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हमने इस सवाल को देखा, उसके बाद में हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि ये YDSC का एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। मैंने क्लास में बोला था, इस बार बार बोला था कि क्वेश्चन जो आएगा वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर आएगा और देखिए फिर से जो सवाल आया है वो YDSC पर बेस्ड ही आया है। तो मैं यहां पर हमें दे रखा है कि एक YDSC सेटअप के अंदर जहां पर जो पाथ डिफरेंस वो लैम्डा है वहां के लिए इंटेंसिटी दे रखी है K। यहां पर लिखा हुआ है कि ये K यूनिट्स है, तो K जो है वो है बेसिकली 4I0, क्योंकि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है वहां पर हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा इंटेंसिटी होता है मैक्सिमम होता है 4I0, तो K दे रखा है 4I0। फिर हमसे जो है वो इंटेंसिटी पूछा है कहां पर, जहां के लिए पाथ डिफरेंस λ/3 है। तो फटाफट हम पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला Δx = λ/2π मल्टीप्लाइड बाय Δφ। Δx का वैल्यू कितना दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, λ/3 = λ/2π इंटू Δφ। तो यहां से मैंने निकाल लिया Δφ, इसका वैल्यू आ जाता है 2π/3। यह आ गया हमारे पास में फेज डिफरेंस। और अब मैं निकालूंगा इंटेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर φ/2। हमें फाई का वैल्यू दे रखा है 2π/3, 4I0 की जगह पर हमें लिखना है K, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर π/3। cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा K/4। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1 K/4। मैंने क्लास में बोला था इस साल कि जो क्वेश्चन आएगा वो YDSC पर ही आया और देखिए क्वेश्चन जो आया है वो YDSC पर ही आया है। चलिए आगे चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स है बेटा 8 न्यूटन, एक फोर्स है 6 न्यूटन और हमसे पूछा है पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ और उसकी डायरेक्शन बताओ। सिंपल है कि इसका जो मास दे रखा है वो 2 kg, जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो है 10 न्यूटन √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। रही बात एक्सेलरेशन की, वो होता है नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन = 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 kg, तो ये आ गया डिवाइड बाई 2 kg, ये 10 न्यूटन है। यहाँ पे यहाँ लिखते हैं 10 न्यूटन डिवाइड बाई 2 kg, तो ये आ गया 5 मीटर, सॉरी इसका जो मास है वो है 5 kg, यहाँ 5 kg, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रही बात एंगल की, इस एंगल को थीटा लिखते हैं, तो tan थीटा = 3/4 और ये किसके साथ में है ये ध्यान देना है, 8 न्यूटन के साथ में है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर tan 1 3/4 विद 8 न्यूटन। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है। सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है, F = ma और वेक्टर एडिशन करना था और उसके बाद में फोर्स का डायरेक्शन बताना था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सर्किट का है लेकिन सिंपल सीरीज और पैरेलल का ही है। यहां पर 4 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 C4 और इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस है इन सभी की वो बराबर है 10 माइक्रोफेरेड। एक 5वां कैपेसिटर और लगा रखा है C5 जिसका वैल्यू है 2.5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहां पर ये जो कैपेसिटर दे रखा है हमें, ये C1 C2 C3 C4 ये चारों कैपेसिटर किसमें हैं, सीरीज के अंदर हैं। तो 10 10 10 10 का सीरीज कितना हो जाएगा, 10/4 कितना हो गया 2.5। तो मैं यहां बता सकता हूं कि इनका इक्विवेलेंट हो गया 2.5 माइक्रोफेरेड और ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी कितना है 2.5 माइक्रोफेरेड। क्योंकि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड आ गया और बैटरी कितने वोल्ट की है, 50 वोल्ट की। तो जो यहां पर चार्ज जाएगा Q, उस Q का वैल्यू कितना आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये वैल्यू आ गई 250 माइक्रोकूलम। ये बैटरी ने चार्ज भेजा वो है 250 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन ने दो चीजें पूछी है यहाँ पर, एक तो पूछा है हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताओ और दूसरा पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो सिंपल था, ये 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया था 5 माइक्रोफेरेड। और रही बात हर एक पर चार्ज की, तो ये कितना है 2.5, तो इधर तो चला गया 125 माइक्रोकूलम और इन सभी में इंडिविजुअली सभी पर 125 माइक्रोकूलम भी रहेगा क्योंकि ये सारे किसमें हैं, सीरीज में है। तो आंसर क्या आएगा बताओ 5 माइक्रोफेरेड तो हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
और 125 माइक्रोकूलम जो है वो हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का वैल्यू आएगा। तो सिंपल सीरीज पैरेलल का जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटर से पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, ये सवाल PYQ भी है, क्लास में भी लिखवाता हूं, और ये याद कराई हुई बात है कि अगर हम बैटरी की, ये बोला है कि सेल की और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो वहां पर नल पॉइंट जो वो चेंज नहीं होता है, बैलेंस पॉइंट वहीं पर ही रहता है। लेकिन इस सवाल में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहां पर यह भी दे रखा है कि अगर आप जॉकी को मूव करेंगे तो क्या होगा। तो भाई जॉकी को मूव करूंगा तब तो नल पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा ही, लेकिन अगर जॉकी वहीं लगा रखी है जहां पहले नल पॉइंट था तो बैलेंस पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो यही वाला आंसर हो जाएगा कि जो है वो दोनों साइड में शिफ्ट होगा। कब? अगर हम जॉकी को शिफ्ट करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो बैलेंस पॉइंट के केस में वहीं पर ही रहेगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था हमसे कि अगर हम इस सेल की और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं और फिर हम जॉकी को मूव करते हैं तो क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा कि बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन, लेकिन जो इनिशियल नल पॉइंट था वो फाइनली नल पॉइंट रहेगा अगर आप सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। याद करवाया हुआ सवाल है मेरा आपको। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पावर ऑफ अ क्रेन व्हेन अ मास 1000 kg लिफ्ट टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकंड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पावर का फॉर्मूला लिखना था W डिवाइड बाई T, क्योंकि एवरेज पावर ही निकालेंगे, और W को क्या लिखेंगे, mgh डिवाइडेड बाई T। मुझे लगता है ये सबसे आसान सवाल था इस पेपर का, जहां पर हमें सिंपल वैल्यू रखनी है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 kg मल्टीप्लाइड बाई g दे रखा है 9.8, h का वैल्यू है 20 और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। सब कुछ ऐसा यूनिट में ही दे रखा है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। तो आंसर आ जाता है यहाँ पर 19.6 इंटू 10 टू द पावर 3, 19.6 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट, जिसको हम लिख सकते हैं 19.6 किलोवाट। सॉरी ये आंसर नहीं आएगा, 19.6 किलोवाट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। अब आगे वाले सवाल पर चलते हैं हम फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो भाई क्या बताऊं इसके बारे में, तो ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला ही पूछ लिया। मतलब क्या बोला, यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला बताओ, कंप्रेसिबिलिटी बताओ, बल्क मॉड्यूलस बताओ और पॉइजन्स रेशियो बताओ। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट हुक्स लॉ के अंदर सारी सिर्फ फार्मूला लिखने थे। ये रहा यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला बन गया भाई ये FL अपॉन A डेल्टा L। उसके बाद में बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस को क्या लिखते हैं, B इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। तो ये वाला बन गया अपने पास में बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस तो हो गया 4, कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा होता है तो ये बन गया 3rd, और पॉइजन्स रेशियो आ गया 1। तो हमारे पास में इसका आंसर हो गया A का है 2। A का 2 किस में दे रखा है, ओ नो, एक में ही दे रखा है A का 2। तो इसका आंसर हो गया 4, 2 3 4 1। ये रहा 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और उसके बाद में 1। ऑप्शन भी ऐसे बनाएंगे, एक भी कर दोगे ना तब भी आंसर आ रहा है हमारे पास में। चलिए आगे वाले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। जो क्वेश्चन दे रखा है ये अच्छा सवाल है, लेकिन हम आपको रे डायग्राम में सिखाते हैं। बहुत सिंपल रे डायग्राम बताता हूं मैं आपको इसके बारे में कि जब हम एक कॉनकेव लेंस लेते हैं, क्वेश्चन ने बोला है कि कॉनकेव लेंस लीजिए और पैरेलल रेस को इंसिडेंट करिए। ये मैंने पैरेलल रेस इंसिडेंट करी और बताना है कि भैया फाइनल जो इमेज होगी रिफ्रैक्शन के बाद में वो क्या होगा। तो ये होता है इसका रिफ्रैक्शन, ऐसा हो गया कुछ इसका रिफ्रैक्शन। तो ये जो इमेज बनती है वो यहाँ फोकस के ऊपर बनती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्शन के बाद रेस कहां पर हो रही है, डाइवर्ज, एंड दे अपीयर टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, जो कि इसका फोकस नंबर 1 है। तो हम लिखेंगे कि क्या होगा, अपीयर्स टू डाइवर्ज, ये अपीयर्स टू डाइवर्ज, और कहां से अपीयर हो रही है, फोकस से। तो ये आ गया इसका आंसर, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो इस सवाल का आंसर हो गया 2। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपके जो रे डायग्राम है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। आगे वाले सवाल पे के ऊपर मूव करता हूं कि एक वायर दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का सवाल है कि एक वायर दे रखा है, उसको रिंग की शेप के अंदर हमने कन्वर्ट किया है, और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। तो पहले तो हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए इस एक्सिस के अबाउट लिखते थे 1/2 mr², फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट लिखेंगे 3/2 mr²। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इस एक्सिस के अबाउट। अब दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मास, एक चाहिए रेडियस। तो पहले तो निकाल लेता हूं मास, क्योंकि इसने दे रखा है जो यहां पर इसका लीनियर मास डेंसिटी है वो m, स्मॉल m लिखा हुआ है, तो आप कैपिटल M की जगह पे लिख सकते हो स्मॉल m मल्टीप्लाइडेड बाई लेंथ L।
और रही बात लेंथ की, उसको लिख सकते हैं 2πr। अब मुझे बस ये दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 3/2, m की जगह पे स्मॉल m इंटू कैपिटल L, और r की जगह पे कितना हो गया अपना L/2π, तो L/2π का होल स्क्वायर, तो 3/8 हो जाएगा, 3m हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, तो 3m L क्यूब, और नीचे आ गया 8π स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर 1। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। थैंक यू। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन था कि इसके अंदर हमें मास दे रखा है किसी बॉक्स के अंदर और इसकी लेंथ दे रखी है क्यूबिकल की, और हमसे बोला गया डेंसिटी को हमें सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। तो डेंसिटी हम सभी जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। मास हमें गिवन है 5.580, और क्योंकि हमें दे रखा है कोई ना कोई मेटेलिक क्यूब है, क्यूब के लिए हमें वॉल्यूम डिफाइन है L क्यूब, तो 5.580, और क्योंकि लेंथ गिवन है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10⁻⁻² का होल क्यूब। इसको जब बेटा हमने सॉल्व किया है तो अप्रॉक्स आंसर हमारे पास 7.654 आया। अब इसको क्योंकि डिवीजन में हमने रूल पढ़ा है कि हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, तो यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर होनी चाहिए। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 7.6, तो इसका आंसर होगा बेटा 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते, देखिए। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये था कि किसी भी हमारे पास ट्रैवलिंग वेव के लिए इक्वेशन गिवन है और हमें चाहिए फेट डिफरेंस। अब देखो बेटा, फेट डिफरेंस का सीधा रिलेशन हम पढ़ते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन सभी ने पढ़ा हुआ ही है। अब क्लियरली 2π/λ कुछ नहीं है, k ही एक तरीके से, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू k डेल्टा एक्स, और k निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन में दे रखा है 2 cos, 2π को अगर हम अंदर ले जाएं तो 2π इंटू 10t माइनस 2π इंटू 0.0080। देखो बेटा, इसी का काम है, आगे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि kx जो टर्म होती है इक्वेशन में वहीं से हमें k ढूंढना है। बट बेटा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमें दे रखा है x सेंटीमीटर में, तो आपको उसको कंप्लीटली मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल k अगर हम इस डेटा से उठा के रखें, k का वैल्यू क्योंकि हमें पता लग रहा है 2π इंटू 0.0080 है, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, और डेल्टा एक्स गिवन है 0.5। इसको रखते हुए अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा बेटा 0.85 रेडियंस के अंदर। तो ये वाला भी आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा प्रिज्म का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास के अंदर बोला ही जाता है कि प्रिज्म रे ऑप्टिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसके कन्फर्म है कि न्यूमेरिकल मिल नहीं है। तो सिंपल देखो बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि प्रिज्म हमें इक्विलेटरल दिया हुआ है, और इक्विलेटरल प्रिज्म के अंदर अगर ये साइड, ये वाली रे पैरेलल दे रखी है किसी बेस के, तो ये मिनिमम डेविएशन का केस है। और मिनिमम डेविएशन हम सब लोग आराम से जानते हैं कि 2i माइनस ए होता है। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 50 डिग्री है, और प्रिज्म का एंगल गिवन है 60 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 40 डिग्री, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए बेटा 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेमीकंडक्टर में डायोड से पूछा गया है। अब हमें देखो वेवफॉर्म पकड़नी है, और आउटपुट जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों ने इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल ने साफ कहा हुआ है कि आपको जो वोल्टेज चाहिए वो डायोड के अक्रॉस चाहिए। अब डायोड के अक्रॉस चाहिए तो हमें वही सेम, पहले हम t/2 तक पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल मानते हुए सॉल्व करते हैं। शुरुआत में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गया तो सीधा बात है, डायोड रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स में डायोड ओपन सर्किट हो जाता है, और ओपन सर्किट के अंदर हमें पता है जो इनपुट का वोल्टेज है वही डायोड के अक्रॉस होता है। तो अगर इनपुट की वेवफॉर्म शुरुआत के अंदर हम बात करें ये है, तो डायोड के अक्रॉस आउटपुट भी हमें यही मिलना चाहिए। सेकंड कंडीशन में जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो डायोड, क्योंकि अब फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में डायोड सभी को पता है शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज होता है बेटा 0, तो इसलिए नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास आउटपुट मिलेगा 0, तो इसका सही आंसर होगा बेटा सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी देखिए बेटा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है कि एक पेंडुलम है, ऑसिलेशन कर रहा है, मेंशन नहीं है, हमें लोड लेना भी नहीं था, मेंशन नहीं है, या तो वो मीन से स्टार्ट होगा या कहीं एक्सट्रीम से होगा। बट बेटा आप लोगों को पता है, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, जो भी फंक्शंस बनता है, अगर डिस्प्लेसमेंट को a sin ओमेगा t भी मानते हो सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी स्क्वायर का फंक्शन आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में भी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर वेवफॉर्म का मतलब है कि हमारे पास वेवफॉर्म ये वाली तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। स्क्वायर वेवफॉर्म एक, ये डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है स्क्वायर वाला वेवफॉर्म दिखते हुए। फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमें पता ही है टाइम पीरियड t/2, तो जो आंसर होगा वो बेटा हो जाएगा 3। सिंपल, x अगर आप a sin ओमेगा t भी लेते हैं, वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा t, या अगर हम x को a cos ओमेगा t ले, क्योंकि हो सकता है एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा हो,
तो उस कंडीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो साइन स्क्वायर वाला ग्राफ होना चाहिए, और साइन स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास थर्ड है, तो उसका बेटा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, ये टीपीडी काफ़ी बार बोला गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब क्या कह रहा है ये देखिए, एक बैटरी है आपके पास और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी बेटा 12 वोल्ट का दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 2 ओम दे रखा है। अब इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया, और न्यूमेरिकल में गिवन है कि जो हमारे पास करंट है वो 0.6 एम्पियर का है, तो जो भी करंट है वो हमें गिवन है 0.6 एम्पियर। तो बेटा देखिए आई सिंपल हम लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर टोटल। आर टोटल हमारे पास आर प्लस आर है, पोटेंशियल क्योंकि हमें पता ही है ईएमएफ जो कि 12 है, और आर कितना है वो निकालना है। स्मॉल आर आपको गिवन है 2 ओम है, और टोटल करंट हमारे पास 0.6 है, तो यहाँ से हम आर इजीली निकाल सकते हैं। आर आ जाएगा 18 ओम, और आर अगर 18 ओम है, अब आपको टीपीडी निकालना है, तो या तो आप ई माइनस आई आर लगा दे तो भी सही है, या फिर आप सीधा आई इंटू कैपिटल आर कर दे तो भी सही है। करंट क्योंकि हमारे पास 0.6 था, रजिस्टेंस क्योंकि 18 था, या फिर ई माइनस आई आर से कर लीजिए। अगर हम टीपीडी की बात करें तो ईएमएफ क्योंकि 12 है, करंट 0.6 है और इंटर रेजिस्टेंस 2 है। इसको रखते हुए सॉल्व करें तो आंसर सीधा दिख रहा है हमें 10.8, क्योंकि 12 में से अगर आप 1.2 को माइनस करते हैं तो डायरेक्टली आंसर हमें दिख रहा है 10.8, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बेटा 10.8 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, पढ़ाया भी जाता है कि किसी स्फेरिकल अर्थ को लेते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एच हाइट तक लिफ्ट करा रहे हैं, तो या तो आप वर्क डन डेल्टा यू से निकाल दें, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या फिर सभी को रिलेशन पता है वर्क डन निकालने का mgh r अपॉन आर प्लस एच, और गिवन है कि जो हाइट है वो खुद रेडियस के बराबर ही है, अर्थ की रेडियस के बराबर। इसको रखते हुए अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा mgr/2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 4। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होगी, काफ़ी आसान है। डायरेक्ट इस बार जो नीट का पेपर है उसके अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल डायरेक्टली टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड है। सारे फॉर्मूले आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो, आपको कोई कैलकुलेशन करनी नहीं थी। mgr h अपॉन आर प्लस एच रिलेशन हम सब पढ़ते हैं, उसी में सीधा डेटा रखना था कि हाइट हमारे आर के बराबर है। इट्स ओके बेटा, mgr/2 सभी को क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते ही हैं कि जो आपको डेल्टा क्यू दे रखा है वो 100 वाट है, वर्क डन हमें दिया हुआ है, तो सीधा रिलेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू क्योंकि 100 है, वर्क डन 75 है, हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, सीधा पता लग रहा है कि आंसर हो जाएगा 25 वाट, तो इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा 3। काफ़ी आसान, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ज़्यादा हमें कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है। कुछ एक न्यूमेरिकल थे जिनमें कैलकुलेशन थी, बाकी पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करें तो डायरेक्टली टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास ही है ऑल्टरनेटिंग करंट का। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए बेटा, रेटेड पावर दे रखी है, रेटेड वोल्टेज दे रखी है, तो क्या हम आर निकाल सकते हैं v²/p से। रेटेड वोल्टेज क्योंकि 220 है और रेटेड पावर 400 है, इसको रखते हुए बेटा रेजिस्टेंस 121 ओम कैलकुलेट करके आ जाएगा, और क्योंकि पावर कंज्यूम जो होता है वो अगेन v²/r, और अब जो वोल्टेज है जिसपे उसको काम कराना है वो 200 वोल्ट है, तो 200 इंटू 200 और रेजिस्टेंस हमारे पास 121। इसको बेटा रखते हैं तो अप्रॉक्स 330.5 समथिंग कुछ आता है, तो जो हमारा नियरेस्ट आंसर है वो 331 वॉट हमें दिख रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बेटा सेकंड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। कोई बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और हमें बताना है कि बॉल जब कोई पर्सन है उनके सबके रिएक्शन टाइम गिवन है, तो कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराएगा उस बॉल को। तो सीधी सी बात है बेटा, जिसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा उसका डिस्टेंस ट्रैवल भी ज़्यादा, तो उसी का अकॉर्डिंग हमें काम करना है। पर्सन ए है उसका रिएक्शन टाइम 0.20, पर्सन बी का 0.22, 0.18, 0.19, 0.21। तो देखो सबसे ज़्यादा रिएक्शन टाइम है बेटा बी का, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल इसी में होगा। फिर नेक्स्ट हमें दिख रहा है ई का, तो सबसे पहले बी, फिर आना चाहिए ई, फिर नेक्स्ट रिएक्शन टाइम सबसे ज़्यादा है ए का, तो फिर आना चाहिए ए, देन फिर आपके पास डी, और देन फिर आपके पास सी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा 4 हो जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल, रिएक्शन टाइम ज़्यादा तो उतना ही बॉल लॉन्ग टाइम पे वो रीच करेगी उसके पास, तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे सटीक आंसर इसका 4, सिंपल रिएक्शन टाइम के बेसिस पे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर देना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए बेटा ये भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपके पास 200 पिकोफेरेड है, उसको आपने किसी बैटरी से चार्ज किया और जो गिवन बैटरी है वो 100 वोल्ट है।
फिर हमने इसको बैटरी से हटाया और एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर इसके साथ लगा दिया, ये भी 200 पिकोफैरेड, ये भी 200 पिकोफैरेड। अब बता रहा है एनर्जी का लॉस कितना होगा सिस्टम के अंदर, तो डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास एनर्जी लॉस का 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब सेकेंड कैपेसिटर को क्योंकि बैटरी से नहीं लगाया है तो वो अनचार्ज है, यानी उसका वोल्टेज 0 है। तो सीधा अगर हम लॉस के अंदर इस वैल्यूज को रखें, यानी 1/2 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 यानी 400, ऊपर एक पीको तो कैंसिल है लेकिन एक पीको फेरेड की पावर बच रही होगी हमारे पास, और वोल्टेज हमारे पास V1 100 है और सेकंड 0 है। इसको रखते हुए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगा। तो इस 31 का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, ये भी स्टैंडर्ड नारायणा के मॉड्यूल, नारायणा के सिंपल जितनी भी प्राइम टेस्ट सीरीज है उसमें आने वाला स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल। 30 ऑसिलेशंस के अंदर आपको टाइम दे रखा है 60 सेकंड, टाइम पीरियड यहीं से आ जाएगा। 1 ऑसिलेशन का बोलिए बेटा 60/30, टी आ गया 2, और टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए हमें पता है 2π√L/g। तो टाइम को रखा हमने 2 = 2π√L/g। अब देखिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, 4 = 4π²L/g। यहाँ से अगर हम L निकालते हैं तो 4g/4π², g को 10 लेके कर लो, π² 10 लेते ही नियरेस्ट परफेक्ट सॉल्व हो रहा है। देखिए g 10 π² 10 10 to 10 कट 4/4 1, या 9.8 लेके भी सॉल्व करते तो भी आंसर वही आता है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा 4, यानी लेंथ आएगी सिंपल पेंडुलम की 1 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं 33। एक और देखिए बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल, करंट आपको दे रखा है 5 एम्पियर, और करंट का ठीक है पीक वैल्यू से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, टाइम पीरियड सभी को पता है 1/f यानी 1/60। और बेटा देखिए ये करंट का हम ग्राफ बनाते ही हैं, ये 0 है, पीक होने तक का जो टाइम है बेटा वो T/4, क्योंकि T/2 पे फिर करंट 0 हाफ साइकिल के लिए। टोटल टाइम हमारे पास है 1/60, हमें बताना है स्टार्टिंग से जब पीक पकड़ा होगा उस टाइम का टाइम कितना है, तो सिंपली T/4। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा T/4, T ऑलरेडी 1/60 यानी 1/60 इंटू 4 यानी 1/240। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 33 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, अभी तक कोई ऐसी कैलकुलेशन है ही नहीं, सिंपल टू द पॉइंट जो चीज़ें पढ़ी उसको अप्लाई करना था। फिजिक्स के सिंपल से सिंपल जो भी आप लास्ट टाइम पे फॉर्मूला रिवाइज करते हैं उसी पे बेस कंप्लीटली पेपर था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, ये भी देखिए बेटा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न पे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। आपको पता है जहाँ ब्राइट फ्रिंज बनती है वहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा, डार्क फ्रिंज पर एनर्जी सबसे कम, बट टोटल हमेशा क्या होती है बेटा कांस्टेंट, चाहे डिफ्रैक्शन हो चाहे इंटरफेरेंस हो। तो पढ़ते देखिए, फर्स्ट यही कह रहा है आपसे, एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी दीज फिनोमिनन आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है आपका कौन सा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारे पास सही है, स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पे नजर मानते हैं, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव्स। अब बेटा देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, ओनली बाय लाइट वेव्स। अगर ये सिंपल वेव भी देता तो ये आंसर सही हो जाता। अब ओनली बाय लाइट वेव ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप साउंड एंड वेव में पढ़ते हैं कि साउंड वेव भी डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस को शो करती है, वहाँ पर भी आप पढ़ते हो मैक्सिमम साउंड मिनिमम साउंड सुनाई देता है। तो सिंपल सी बात है ओनली लाइट वेव, ये कहना गलत है, इसलिए ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है, यानी इसका सही आंसर जाएगा बेटा 1। 34 का जो करेक्ट आंसर है 1 है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, मैक्सिमा वाले पर एनर्जी मैक्सिमम, मिनिमा वाले पर एनर्जी मिनिमा, ये डार्क पर एनर्जी मिनिमम, ब्राइट पर एनर्जी मैक्सिमम, बट टोटल हमेशा कंजर्व। और सेकंड स्टेटमेंट में क्योंकि ओनली बाय लाइट वेव लिखा है तो हम साउंड एंड वेव में पढ़ते हैं कि साउंड में भी मैक्सिमा मिनिमा हमें सुनाई देता ही है, तो इस वजह से ऑप्शन बी गलत हो गया, ओनली बाय लाइट वेव की वजह से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए बेटा ट्रक प्रॉब्लम पढ़ते ही हो आप लोग कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रक प्रॉब्लम के नाम से इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है कि एम मास का ब्लॉक रखा है, ट्रक को आपने एक्सीलरेट करा रखा है, तो ब्लॉक का आपको पता है कि हम जब इस पे लिखते हैं कि ब्लॉक रेस्ट पर रहना चाहिए तो सूडो फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर MAT, और उसको सिंपल FS मैक्स के बराबर रख के आते हैं। और अदरवाइज रिलेशन पता ही है, एक्सीलरेशन जो ट्रक का होता है वो म्यूजी आता है, ये सबसे मैक्सिमम एक्सीलरेशन है जिस पे ब्लॉक ना गिरे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपने किया तो कंफर्म में ब्लॉक मूव करेगा। तो सिंपल म्यू आपको गिवन था कितना है बेटा 0.12, जी का वैल्यू 10, सिंपल आंसर आ जाएगा बेटा 1.2, यानी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4।
के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा 36 टू 45, 36 से 45 तक हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बोल रहा है पहला 36 क्वेश्चन, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉब इज 0.02 जूल, द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ अब हमसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में पूछ रहा है और हमें टोटल एनर्जी दी है। हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब एसएचएम में बॉडी पेंडुलम जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है तो जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतना ही सिंपल सा हमें करना था और हम टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखेंगे और इसको कर देंगे टोटल एनर्जी के बराबर 0.02 जूल। रेस्ट इज कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में हमें ध्यान देना है कि मास हमें ग्राम में दिया है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो यहाँ से v² हो जाएगा 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई m इज 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3, मैंने इसको किलोग्राम में बदल दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो ये 20 बन जाएगा, 20 से 20 कैंसिल और अल्टीमेटली आ जाएगा 2। सो v² इज 2 और हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी, तो द वैल्यू ऑफ v इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.41। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1.41 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ए इज मास नंबर, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3 और पहले ही बोल दिया है ए मास नंबर है। हमें पता है कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है ए टू द पावर 1/3 के एंड वी नो दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। बट इन द सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए। नाउ रिमेंबर दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। तो अगर हम रेडियस का क्यूब करेंगे यहाँ से तो हमें क्लियरली मिल जाएगा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर बोला है द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। नो नो नॉट एटम, ये गलत है। होना क्या चाहिए था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास और न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास के डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट मानेंगे। तो डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस and its constituents is called the mass defect. This is the correct statement. अब यहाँ एटम की जगह इन्होंने न्यूक्लियस लिया और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल मास के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस माइनस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज कॉल्ड मास डिफेक्ट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो विच वन इज करेक्ट, बी एंड डी, और गलत कौन है, ए एंड सी। अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है बी एंड डी आर ट्रू एंड ए एंड सी आर फॉल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो 36 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम। कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले तो हमें इस एंगुलर स्पीड को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आराम से हम कर सकते हैं। ओमेगा नॉट इज इनिशियल स्पीड एंड इट इज 600 आरपीएम। तो 600 इंटू 2 पाई बाई 60। एक रोटेशन में 2 पाई एंड मिनट मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा एंड यू विल गेट 20 पाई। नाउ कन्वर्ट द फाइनल स्पीड 1200 आरपीएम। तो इफ 600 आरपीएम इज 20 पाई तो वी कैन इजिली से कि 1200 आरपीएम विल बी 40 पाई। तो सीधे हम लिख सकते हैं 40 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम। तो वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन अल्फा 40 पाई माइनस 20 पाई, और ये जो स्पीड एंगुलर स्पीड में चेंज हुआ है ये 10 सेकेंड्स में हुआ है। सो डिवाइडेड बाई 10, तो दैट विल गिव यू 20 पाई। 20 पाई डिवाइडेड बाई 10 इज 2 पाई।
नाउ दिस इज आवर एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, हमें यह पता करना है कि इस 10 सेकेंड में वो व्हील कितने रेडियन रोटेट कर गया। तो वी कैन यूज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। यहां हम ओमेगा नॉट की वैल्यू रख देते हैं जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 20 पाई। तो 20 पाई इंटू 10 प्लस हाफ एल्फा इज योर 2 पाई, 2 पाई इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, तो दैट विल गिव यू 200 पाई। और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 100 पाई हो जाएगा प्लस 100 पाई, दैट इज 300 पाई। But remember this is angular displacement of the disk. We have to calculate the number of rotation. Number of rotation के लिए angular displacement divided by 2 pi. तो number of rotation n is equal to 300 pi divided by 2 pi which is 150. तो कितने रोटेशन बोलेगा, अगर उसकी एंगुलर स्पीड 60 आरपीएम से 1200 आरपीएम हो जाए, 150 रोटेशन। नाउ लेट्स चेक। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कितने रोटेशन बोलेगा, 150 रोटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला है सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm। हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस। यहाँ पे एक जो कॉमन मिस्टेक हम लोगों से हो सकती थी वो ये है कि वी विल नॉट कंसीडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये हमने किया है तो हमारा आंसर गलत आएगा। वी हैव टू कंसीडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम मान लेते हैं कि सबमरीन जिस डेप्थ पे जा रही है वो h डेप्थ है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो g। दिस इज द प्रेशर एट डेप्थ h जहाँ पे सबमरीन है। अब हमें पता है कि ये P हमें दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कितना, 100 atm। तो 100 atm को हम लोग पास्कल में बदल लें तो 100 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड P नॉट इज 10 टू द पावर 5। H हमें निकालना है, रो इज 1000 एंड G इज 10। तो यहां से जब इसको लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 99 इंटू 10 टू द पावर 5 होगा एंड दिस इज, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी दिस इज प्लस एंड दिस इज 10 टू द पावर रो जी एच, रो इज 1000, सॉरी रो इज 1000, रो इज 1000। एमकेस में रो की वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, तो रो इज 1000, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4h। इधर हम लाके डिवाइड करते हैं तो h इज इक्वल टू 99 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, 99 इंटू 10 इज 990 मीटर। तो कितने डेप्थ तक सबमरीन जा सकता है, 990 मीटर तक। सो हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन 4 इज 990 मीटर, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देख सकते हैं कि पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर सीरियसली एनसीईआरटी पढ़ा हुआ कोई तो देखेंगे कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही आए हैं। मैच द लिस्ट बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। अगर आप एक भी जानते हो तो भी सही होगा, बट लेट्स से अगर हम लोग ए से ना शुरू करके बी से शुरू करते हैं, हमें पता है विजिबल लाइट जो है वो एटम के ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट्स लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाने पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा और वो विजिबल रेंज में भी हो सकता है। तो इसका तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नाउ गामा रेज, गामा रेज हमें पता है, गामा रेज जो है वो रेडियो एक्टिव जो है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव हो जाएगा हमारा क्लिस्ट्रॉन वॉल्व एंड मैग्नेट्रॉन वॉल्व, यहां से माइक्रोवेव प्रोड्यूस होता है। देन ए का हो जाएगा हमारा 4th और बी का हो जाएगा हमारा 1st। अब बात करते हैं गामा रेज। गामा रेज जो है हमें पता है कि गामा रेज जो है रेडियो एक्टिव डिके का प्रोडक्ट है। जब भी
रेडियो एक्टिव डीके होता है तो अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तो गामा रेज जो हो जाएगा वो रेडियो एक्टिव में चला जाएगा। इंफ्रारेड, नाउ इंफ्रारेड इज द लास्ट वन, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे उसको हीट मिलेगा वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करेगा तो इंफ्रारेड को एमिट करेगा, तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड यानी कि वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देख लेते हैं, तो पहले का हमारा फोर्थ है, तो पहले का फोर्थ केवल दो ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ में। दूसरे का हम लोगों का विजिबल वाला का फर्स्ट है, दूसरे का हम लोगों का फर्स्ट है, तो सेकंड का फर्स्ट, इसमें सेकंड का थर्ड दिया है, इसमें सेकंड का फर्स्ट दिया है, तो ये भी तो केवल दो से, अगर हमें दो पता है केवल फर्स्ट और सेकंड, तो भी हम लोग बहुत आराम से ए और बी अगर हमें पता है तो आगे अपने आप कोई ऑप्शन नहीं टैली कर रहा है तो हम फोर्थ को टिक कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल, ये तो हर बच्चे को पता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो दिस इज ट्रू। सेकेंड बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये देखते हैं, तो अगर हमारे पास किसी भी शेप का कंडक्टर है और इसके सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन सिग्मा, क्लियरली फार्मूले से हमें पता चला, और ये भी फार्मूला एनसीईआरटी में है, ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में है, तो इट विल डिपेंड्स ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इस सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये गलत हो गया। सी द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे ही लाई करेगा, तो दिस इज ट्रू। At the surface of charge conductor, the electrostatic field must be normal to the surface at every point. This is also very important. जब भी कोई कंडक्टर चार्ज होगा तो उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो दिस इज ट्रू। बोला द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। नो, एनसीईआरटी में क्लियर बोला गया है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है, जीरो नहीं, सेम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ है? ए सी डी, तो ए सी डी ओनली करेक्ट, तो यहां पे हो जाएगा हमारा ए सी डी। तो इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी, इंटीरियर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में, और सरफेस चार्ज अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डज नॉट, और हमें पता है कि अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट नहीं होगा। Now what I mean threshold wave? Threshold wave हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से E हमें पता है E इज इक्वल टू 12400 अपॉन 6.6, और अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 187 पॉइंट समथिंग, यानी कि कोई भी वेवलेंथ जो 187.7 से ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, एंगस्ट्रॉम से अगर ज़्यादा होगी तो वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करेगी। नाउ लुक एट द ऑप्शन, केवल एक वेवलेंथ है जो इससे बड़ी है और वह 200 नैनोमीटर, यानी कि ये ये नैनोमीटर में आएगा, ये नैनोमीटर में आएगा, तो 200 नैनोमीटर से बड़ी यानी कि 187 नैनोमीटर से बड़ी जो भी वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होंगी, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ, बहुत सिंपल है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 में है,
तो हमें पता है कि रेडियस होता है 0.529 n स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं 0.529 और n स्क्वायर इज 4, और ये हमारा एंगस्ट्रॉम में आता है, तो अगर इसको मीटर में बदल देंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, एंड द करेक्ट आंसर इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस, अब यहां पे ध्यान देना फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेज अब द सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ डायोड का इस तरह से होता है, इस तरीके से, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये करंट बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज कर जाती है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। नो, रिवर्स सैचुरेशन करंट रिवर्स बायस में आएगा, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की। तो फॉरवर्ड बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं आ सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ए इज ट्रू एंड बी इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, बोला है फ्लास्क कंटेन्स आर्गन क्लोरीन इन रेशियो 2:1। ये रेशियो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आरएमएस स्पीड दो ही चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट, और किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि VRMS √3RT/mW। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, हमसे पूछा है आर्गन का और क्लोरीन का, तो V आर्गन अपॉन V क्लोरीन अगर यहां से हम करेंगे तो दैट विल बी, सब कुछ सेम है, टेम्परेचर सेम है, इस रेशियो का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो आर्गन के लिए मॉलिक्यूलर वेट जो है नीचे आ जाएगा, और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है 70, और आर्गन का हो जाएगा 40, तो यह आ जाएगा √7/2। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। तो ये हम लोगों के 36 से 45 क्वेश्चन थे, पेपर बहुत आसान था। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।